السلام علیکم دوستوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ساتھیو، آج ہم سیٹر 2013 کے پیپر کو حل کرتے ہیں۔ بلا تاخیر ہم اقتباس کو پڑھتے ہیں، ہدایات دیکھتے ہیں۔ درج ذیل اقتباس کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 121 سے 129 تک۔ اقتباس ہے: دل کی جس قدر بیماریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ مہلک یعنی بناشکاری خوشامد کا اچھا لگنا ہے۔ جس وقت انسان کے بدن میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو وبائی ہوا کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے تو اسی وقت انسان مرض مہلک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جبکہ خوشامد کے اچھا لگنے کی وجہ سے لگنے کی بیماری انسان کے دل کو لگ جاتی ہے، اس کے دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ جس طرح کی خوشگلو گانے والے کا راگ، یعنی خوشگلو کہتے ہیں اچھا گانے والا، اور خوش آئند کہتے ہیں اچھا لگنے والا۔ خوش آئند باجے کی آواز انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کی چبھنے کی جگہ اس میں ہو جاتی ہے، یعنی اس کے دل کو نرم بنا دیتی ہے۔ اول یعنی شروع میں پرارمبھ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آپ خوشامد کرتے ہیں، یعنی ہم سوئم اپنی خوشامد کرتے ہیں اور اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ خوشامد کر کے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے شنہ اوروں کی خوشامد ہم پر اثر کرنے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یعنی پھل یہ ہوتا ہے کہ اول تو خود ہم کو اپنی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے، یعنی ہم سے دشمنی کرنے لگتی ہے، اور ہمارے بیرونی یعنی باہر دشمنوں سے جا ملتی ہے، اور جو محنت و مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے تھے وہ ہم خوشامدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ پہلا اقتباس ہے۔ ہم نے سوالات کے جوابات پر کچھ نشان لگا رکھے ہیں، صرف آپ کو جلدی حل کرنا ہے۔ تو چلیے، اس پیراگراف کا عنوان ہے، تو دوستو اس پیراگراف کا عنوان ہے خوشامد، کیونکہ خوشامد ہی کی وجہ سے ساری بیماریاں انسان کے دل میں پیدا ہو رہی ہیں۔ دوسرا سوال ہے: دوسروں کی خوشامد جب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب دوسروں کی خوشامد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے تو اقتباس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے ہم کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا آپشن نمبر 3 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اور تیسرا سوال ہے: خوشامد کی وجہ سے انسان کے دل میں کون سا مادہ پیدا ہو جاتا ہے؟ تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4۔ اگلا سوال ہے: خوشامد کیسا مرض ہے؟ وبائی مرض ہے، پھیلنے والا مرض ہے، یا موذی مرض ہے، یا مہلک مرض ہے؟ تو دوستو خوشامد ایک مہلک مرض ہے، یعنی بناشکاری روگ ہے۔ اگلا سوال ہے: انسان اس مہلک مرض میں کب گرفتار ہوتا ہے؟ تو دیکھیے آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہوگا جب اسے خوشامد اچھی لگنے لگتی ہے۔ اگلا سوال ہے: انسان کو زہریلی باتوں کی خواہش کب ہوتی ہے؟ تو ساتھیو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 3، یعنی خوشامد کے اچھا لگنے کی بیماری کی وجہ سے زہریلی باتوں کی خواہش ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے: خوشگلو گانے والے کا راگ اور خوش آئند گانے کی آواز انسان پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ تو دوستو ابھی ہم نے کہا تھا کہ انسان کے دل میں اس دل کو پگھلا دیتی ہے، اس میں کانٹے کے چبھنے کی جگہ ہو جاتی ہے، یعنی دل کو نرم بنا دیتی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، انسان کے دل کو اتنا نرم بنا دیتی ہے کہ اس میں ہر اچھی بری چیز کی جگہ ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے: وصف کی جمع پوچھا گیا ہے۔ تو دوستو وصف کی جمع ہے اوصاف، وصفیں نہیں ہوگا، اوصافوں بھی نہیں ہوگا، اور اوصافین نہیں ہوگا، بلکہ وصف کی جمع ہے اوصاف۔ وصف کہتے ہیں وشیشتا کو، اور اسی کی جمع ہے یعنی بہووچن ہے اوصاف، یعنی وشیشتائیں۔ اگلا سوال ہے: انسان خوشامدیوں سے کرنے لگتا ہے، کیا کرنے لگتا ہے؟ جب انسان کی خوشامد کوئی دوسرا کرتا ہے تو جو محنت و مہربانی اپنے ساتھ انسان کرتا تھا وہی محنت و مہربانی دوسروں کے ساتھ کرنے لگتا ہے۔ آئیے اگلا اقتباس دیکھتے ہیں۔ اقتباس ہے:
काबुली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी। मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता पहने, साफा बांधे, लंबे डील डोल का एक काबुली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबुली वाले ने घूमकर देखा। यानी बच्ची जो थी मुन्नी, वो खेल रही थी और वो बड़ी हंसमुख थी, तो उसकी आवाज़ जब काबुली वाले ने सुना तो उसने घूमकर मुड़कर देखा। मुन्नी घबरा गई और उस काबुली वाले को फाटक में आता देखकर अंदर भाग गई। इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबुली वाले बच्चों को थैले में डालकर ले जाते हैं। तो उसकी माँ चूँकि बच्चों को अपने काबुली वाले से डराती थी, तो जब काबुली वाले को मुन्नी ने देखा तो वो घर में भाग गई। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बुलाया। काबुली वाला अपनी झोली से किशमिश निकालकर मुन्नी को देने लगा। क्या दिया? किशमिश। किसी तरह लेने पर मुन्नी राज़ी नहीं हुई। उसका शुबा और भी बढ़ गया, यानी वो डर गई और उसको ये शक हुआ, ये शंका हुआ कि वो इसी बहाने से मुझे पकड़कर अपने थैले में भर कर ले जाएगा। वो डर कर मुझसे लिपट गई, यानी मुन्नी अपनी माँ से जो है डर कर लिपट गई। काबुली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हुआ। तारुफ कहते हैं जान पहचान को, जो पहली मर्तबा जब जान पहचान होती है उसको कहते हैं तारुफ। मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाज़े पर देखा कि मुन्नी उस काबुली से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। वो बादाम और किशमिश लिए हुए थी। मैंने काबुली से कहा, ये सब क्यों दिया? अब मत देना। यह कहकर मैंने जेब से एक अठन्नी निकाल कर काबुली को दे दी। अब आइए सवाल को हल करते हैं। काबुली वाले के कंधे पर था क्या? था आटे का थैला था, फलों का, सब्ज़ी का या मेवे का थैला? तो आप जानते हैं कि काबुली वाले के कंधे पर क्या था? मेवे का थैला था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मुन्नी काबुली वाले को देखकर क्यों घबरा गई? उसके डील डोल को देखकर, या उसको ऐसा लगा कि काबुली वाला उसे थैले में डालकर ले जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उसको लगा कि उसे जो है थैले में डालकर काबुली वाला लेकर चला जाएगा। अगला सवाल है, मुन्नी की माँ उसको किस बात पर डांट रही थी? शोर करने पर, झूठ बोलने पर, काबुली वाले की तरफ से अठन्नी देने पर, स्कूल का काम न करने पर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी काबुली वाले की तरफ से अठन्नी देने पर मुन्नी की माँ उसको डांट रही थी। अगला सवाल है, काबुली वाला मुन्नी को अपनी झोली से क्या निकाल कर देता था? सेब, किशमिश, बिस्किट या चॉकलेट? तो दोस्तों उसके कंधे पर जो थैला था उसमें किशमिश वगैरह थे, तो उसमें से वो किशमिश निकाल कर देता था। आइए अब इक़्तिबास ख़त्म हुआ। अगला सवाल हम देखते हैं 136 नंबर। यहाँ भी हिदायत दिया गया है, दर्जे सेल सवालों के दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल है, ये पेडागोजी पर मबनी है। आइए देखते हैं। हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की समझ, फ़हम की जांच, लिखने, बोलने, पढ़ने का टेस्ट लेता है। इस अंदाज़े क़द्र का मकसद क्या है? पूछा जा रहा है कि हर सेशन के आखिर में, हर जो है क्लास के आखिर में जो है टीचर जो है सुनने की समझ, फ़हम की जांच यानी समझने की जांच, बोलने पढ़ने का टेस्ट लेता है। इस अंदाज़े क़द्र यानी इस मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी तलबा की या छात्रों की तमाम तर सलाहियतों की जांच करना होता है, क्योंकि वो पढ़ने की भी, सुनने की भी, समझने की भी, बोलने और लिखने सारी चीज़ों का टेस्ट ले रहा है। सारी चीज़ों का टेस्ट लेगा तो उसका मकसद क्या है? तमाम तलबा की सभी जो है सलाहियतों की, सभी योग्यताओं की जांच करना। अगला सवाल है, ई लर्निंग है। ई लर्निंग क्या है? आप जानते होंगे, जवाब दे सकते हैं। ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग जो होता है वो है फासलाती तालीम या हार्डवेयर से जुड़ी हुई या ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, या ऑप्शन नंबर 4 फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज़। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ब्लेंडेड लर्निंग यूजिंग टेक्नोलॉजी। अगला सवाल है 138 नंबर। एक टीचर तमिल ज़बान में सबक पढ़ाने के लिए मुस्तनद मवाद चाहता है।
यानी जो है काबिल जो है एतबार, भरोसेमंद जो है वो मटेरियल चाहता है तो उसे दर्ज झेल का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा, सिवाय यानी इसमें से जो मुनासिब नहीं उसको आपको मुंतखब करना, चुनना है। तमिल अखबार पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश ज़बान के अखबार के मज़मून का तमिल ज़बान में तर्जमा करके। तीसरा ऑप्शन है मुलाजमत की दरख्वास्त का फार्म तमिलनाडु की कंपनी में इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सही हैं। यानी सबक पढ़ाने में मुसलमान चाहता है तो इन तीनों का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा। तमिल अखबार का इस्तेमाल भी मुनासिब होगा, इंग्लिश ज़बान के अखबार के मज़मून का तमिल ज़बान में तर्जमा भी मुनासिब होगा, और मुलाजमत की दरख्वास्त का फार्म जो है तमिलनाडु की कंपनी में इस्तेमाल जो किया गया है उसका इस्तेमाल भी मुनासिब होगा। पूछा गया सिवाय यानी क्या मुनासिब नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कोयम्बटूर में स्टेट साइन की तस्वीर जो है ये मुनासिब नहीं होगा। 139 नंबर सवाल है गैर लफ्ज़ी तरसील होगी। गैर लफ्ज़ी यानी जिसमें लफ्ज़ ना हो, बोले जाने वाले अल्फाज, हरकत व सकनात, आदाद, छपे हुए अल्फाज। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो आप चुन सकते हैं। गैर लफ्ज़ी तरसील क्या होगी? हरकत व सकनात, ये लफ्ज़ नहीं है क्योंकि जो बोले जाने वाले अल्फाज हैं वो तो लफ्ज़ी हो गए, और आदाद जो गिनते हैं वो भी अल्फाज में लिखे हुए, छपे हुए अल्फाज हैं वो तो अल्फाज ही हैं। तो जो हरकत व सकनात है यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़्म, सुकून वगैरह, ये हरकत व सकनात गैर लफ्ज़ी तरसील होंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल यानी 140 नंबर सवाल है दर्ज झेल खूबियाँ को ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक़ हैं, सिवाय यानी कौन कौन सी मुताल्लिक़ हैं ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से और कौन नहीं। जो नहीं है उसी को आपको अलग करना है। क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ़ करना, एक बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल, हम जमातों के साथ मिलकर काम करना उन तलबा को तरगीब देता जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। तो ग्रुप लर्निंग से जो मुताल्लिक़ है ऑप्शन नंबर 4 भी मुताल्लिक़ है, और क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ़ करना ये भी मुताल्लिक़ है, और एक बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम जो है ये मुताल्लिक़ नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल, यानी पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये ग्रुप से मुताल्लिक़ हैं, और कौन सा नहीं है? टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल, यानी शिक्षक केंद्रित जो निर्देश है इसका मुतबादिल ये ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक़ नहीं है। अगला सवाल है क्लास में किसी मशहूर वाक़या की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे कहते हैं। आप जानते हैं कि अगर किसी मशहूर वाक़या की तरफ इशारा मौजूद हो तो अगर आपने सनात पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे किसी मशहूर या तारीख़ी वाक़ये की तरफ जो इशारा होता है उसको तिलमीह कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। जैसे एक शेर है मूसा नहीं जो सैर करूं कोहे तूर का, तो देखिए एक तारीख़ी वाक़या है जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे आग लेने के लिए, उनको पैगंबरी मिली थी, तो उसकी तरफ इशारा किया गया है एक मशहूर वाक़या की तरफ, तो यहाँ है तिलमीह। अगला सवाल है 142 नंबर, इस रीडिंग टेस्ट में आप किस तरह नंबर देंगे। सवाल है धर्मशाला कहाँ वाक़ है। जवाब है पहला जवाब हिमाचल प्रदेश में, दूसरा जवाब है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। तो पहला मुख्तसर जवाब है और दूसरा जो है मुफस्सल जवाब है। तो आप इसमें किस तरह नंबर देंगे तालिबे इल्म को, छात्रों को। दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, पहले जवाब के लिए 0। दूसरा ऑप्शन है पहले जवाब के लिए 1 नंबर और दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, और तीसरा ऑप्शन है पहले जवाब के लिए 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर, और चौथा ऑप्शन है 2 जवाब के लिए, दूसरे जवाब के लिए 1.5 नंबर और पहले जवाब के लिए 1 नंबर।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पहले जवाब के लिए 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर आप देंगे। क्यों देंगे? इसलिए कि दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल है 143 नंबर, वसी मुताला का मतलब है, यानी विस्तृत अध्ययन का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? गैर मारूफ लफ्ज़ों के मानों का अंदाज़ा करना, मौजू को समझने और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पढ़ना, मरकज़ी ख़याल को समझना। चौथा ऑप्शन है मतन के मवाद के बारे में पेशीन गोई करना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, जैसा कि आपके सीटेट ने माना था, वरना इसका तीसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है। अगला सवाल है, सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई, उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है? तलबा के ज़रिए तस्वीर की सूरत गरी। दूसरा ऑप्शन है एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा करना। तीसरा ऑप्शन है ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदोल साजी करना। जदोल साजी कहते हैं खाका बनाना। और चौथा ऑप्शन है बुलंद आवाज़ से मतन पढ़वाकर जांच करना। कह रहे हैं सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई, उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है? तलबा के ज़रिए तस्वीर की सूरत गरी की जाएगी तो सुनने की जांच नहीं हो सकती। एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा करेंगे, या ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदुल साजी करना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या, बताइए? बुलंद आवाज़ से मतन पढ़वाकर जांच करना या ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदुल साजी मुकम्मल करना। जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर